चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। राज्यसभा में जीरो आवर में सांसद कार्तिकेय शर्मा ने आपको बता दें कि यहां पर ई स्पोर्ट्स को आधिकारिक खेल का दर्जा देने की मांग रखी, साथ ही अनियंत्रित ऑनलाइन गेमिंग पर भी चिंता जताई। इस मुद्दे को उठाते हुए कार्तिकेय शर्मा ने सरकार से ई स्पोर्ट्स को आधिकारिक खेल का दर्जा देने, ऑनलाइन गेमिंग के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा तैयार करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ये विषय सिर्फ मनोरंजन से जुड़ा नहीं है, बल्कि युवा रोजगार, डिजिटल अर्थव्यवस्था, बच्चों की सुरक्षा से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक गेमिंग को संभावनाओं और जोखिमों से भरा डिजिटल फ्रंटियर बताते हुए कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि भारत की ऑरेंज इकोनॉमी अब कोई हाशिए का क्षेत्र नहीं रह गई है। भारत की क्रिएटिव इकोनॉमी का वर्तमान आकार लगभग 30 अरब अमेरिकी डॉलर है और ये देश की करीब 8% कार्यशील आबादी को रोजगार दे रही है। ये क्षेत्र सरकार के $1 ट्रिलियन डिजिटल अर्थव्यवस्था के लक्ष्य का एक अहम आधार बन चुका है। कार्तिकेय शर्मा ने साफ तौर पे कहा कि भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा गेमिंग ऑडियंस है, जहां 50 करोड़ से ज्यादा एमेच्योर गेमर्स और लाखों प्रोफेशनल खिलाड़ी मौजूद हैं। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि पूरे गेमिंग इकोसिस्टम, गेम डेवलपमेंट, पब्लिशिंग, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स को कवर करने वाला एक समग्र नियामक ढांचा तैयार किया जाए। साथ ही उन्होंने अनिवार्य गेम यानी कि कंपल्सरी गेम ऑडिट्स लागू करने की भी सिफारिश की है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को जो है बच्चों के लिए भी सुरक्षित बनाया जा सके। राज्यसभा में सांसद कार्तिकेय शर्मा ने एक अहम डिमांड यहां पर रखी है, मांग रखी है। कंटेंट क्रिएटर्स को बढ़ावा देने की उन्होंने सराहना की। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए एक खास ढांचा बनाने की बात उन्होंने कही है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। I am talking about the world of electronic gaming. As we march towards the vision of a Viksit Bharat in 2047, we must recognize the orange economy. Our creative and digital sector is no longer a peripheral industry. It is a vital pillar of our 1 trillion digital economy goal. Currently, India's creative economy is valued at approximately $30 billion, contributing to nearly 8% of our working population. However, sir, we must distinguish between two very different realities within the sector. Sir, on one hand, we are witnessing the crisis of unregulated amateur gaming and its impact. The sprawling nature of unregulated amateur online gaming has led to grave repercussions. We all have heard the heart-wrenching stories of young children driven by gaming addiction, descending into spirals of self-harm, as we saw in incidents that happened recently, the unfortunate incident where 3 young kids lost their lives. Clinical studies now show a direct link between excessive unregulated gaming and the rise of ADHD, acute anxiety and depression amongst our children and youth. Sir, as a parent, not merely as a member of parliament, I request the government to regulate the entire ecosystem from game development to streaming and mandate game audits to ensure these digital spaces are safe for our children. Sir, while we create a safe and a conducive ecosystem, on the other hand, there is a potential of professional esports largely which remains untapped. So we have millions of serious, highly skilled electronic gamers who are passionate about this craft. India now boasts of 500 million amateur gamers, the largest gaming audience in the world, and lakhs of professional gamers. Our gaming market is valued at about $3.7 billion right now. It's projected to soar to $10 billion by 2030. Recently, the AVGC sector alone, which will require roughly about 2 million skilled professionals by 2030, is a great opportunity for our youth, for employment particularly. To unlock the full value of gaming, design, development, professional leagues, I urge the government to grant official sports status to esports, as they are also being accepted by international competitions, Olympics and other bodies. This will provide our youth with a structured, legitimate career path while positioning Bharat as a global leader in the digital economy. The budget's proposal to set up AVGC content creator labs in 15,000 secondary schools is the right start for our youth, Yuva Shakti, in the right direction. So it's a very important area. तो राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने खास यहाँ पर बात कही है। कंटेंट क्रिएटर्स किस तरीके से इकोनॉमी का हिस्सा हैं, इसको लेकर उन्होंने बड़ी बात कही है। हमारे साथ जुड़ रही हैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा की एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्योति सांगवान, उनसे बात करेंगे। ज्योति जी, यहाँ पर राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने अहम बात कही है। जिस तरीके से ऑरेंज इकोनॉमी का उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि ऑरेंज इकोनॉमी पर ध्यान देने की जरूरत है, कंटेंट क्रिएटर्स को बढ़ावा देने की जरूरत है, एक ढांचा, एक इंफ्रा तैयार करने की जरूरत है ऑनलाइन। कैसे देखती हैं आप इस पूरी
आपकी डिमांड को और क्या कुछ पर्सपेक्टिव्स यहाँ पर निकल के सामने आ सकते हैं? ज्योति जी। बिल्कुल लक्ष्मी, देखिए बहुत बड़ा मुद्दा है ये। केवल अर्थव्यवस्था से जुड़ा या मनोरंजन से जुड़ा मुद्दा नहीं है, बल्कि जो बच्चे हैं, यूथ हैं, टीनेजर्स हैं, उनकी सेफ्टी से जुड़ा मुद्दा भी है, जो कि सांसद कार्तिकेय शर्मा की ओर से कहा भी गया कि ऑरेंज इकोनॉमी को हम इग्नोर नहीं कर सकते। और ऐसा नहीं कि बिल्कुल हाशिए पर गए। जब आप डिजिटल इकोनॉमी का 1 ट्रिलियन का लेकर चलते हैं कि टारगेट अमेरिकी डॉलर का, तो इसमें एक बहुत बड़े मजबूत पिलर की तरह ये भूमिका अदा कर सकता है। तो वो बात कर रहे थे डिजिटल गेमिंग को लेकर कि ये संभावनाओं से भरा हुआ है, अपार संभावनाएं इसमें हैं, लेकिन खतरे भी बहुत सारे हैं, भरपूर हैं। ऑफिशियल इसे स्पोर्ट बनाया जाए, स्पोर्ट्स को लेकर बात कर रहे थे। विश्व पटल पर जिन्हें मान्यता प्राप्त है, और मान्यता प्राप्त होने के चलते भारतीय जो यूथ हैं, क्योंकि लाखों की संख्या में वो हैं जो प्रोफेशनल हैं दरअसल, और करोड़ों की संख्या में वो हैं जो कि शौकिया खेल रहे हैं। तो दोनों बातों को लेकर चर्चा की है। एक तरफ हम अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं, ऑरेंज इकोनॉमी अब हाशिए पर नहीं है, मनोरंजन के साथ साथ अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, लेकिन इसमें हमें करना क्या होगा? गेम डेवलपमेंट से लेकर पब्लिशिंग की बात करें, स्क्रीनिंग की बात करें, हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होगा, विनियमित करना होगा, गेम ऑडिटिंग हमें करनी होगी। एक तरफ इससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में, क्योंकि हमारे पास ई ऑडियंस है, दर्शक है, हमारे पास एक बहुत बड़ा मार्केट भारत के पास है। तो डिजिटल इकोनॉमी मजबूत होगी। दूसरी ओर जो बच्चे खेल रहे हैं, जो यूथ हैं, जो टीनेजर्स हैं, जिसकी चिंता भी जाहिर की गई है कार्तिकेय शर्मा की ओर से कि वो केवल एक सांसद के तौर पर नहीं, बल्कि एक अभिभावक के तौर पर इस बात की चर्चा कर रहे हैं। जो अलग अलग बातें हैं, मेडिकल से जुड़ी, रिसर्च से जुड़ी, रिपोर्ट से जुड़ी, क्लिनिकल जो बातें हैं, उनका भी जिक्र किया गया कि कैसे यूथ, कैसे टीनेजर्स अवसाद से जुड़ रहे हैं, डिप्रेशन से जुड़ रहे हैं। हाल ही में गेमिंग के चलते जो बच्चों की मौत हुई है या सेल्फ हार्म खुद को किया है, उसका भी जिक्र किया गया है। तो एक तरफ वो चिंता जाहिर कर रहे थे, दूसरी ओर एक बहुत बड़ा जो अपार संभावनाएं हैं ई गेमिंग को लेकर, ई स्पोर्ट्स को लेकर, उसे ऑफिशियल कर दिया जाए, जिसे दुनिया में बड़ी बड़ी प्रतिस्पर्धाओं में, प्रतियोगिताओं में मान्यता प्राप्त है, तो उससे भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। दूसरा, जो शौकिया जो बच्चे गेम खेल रहे हैं, जिनको जानकारी नहीं है, जिनको लत बड़े स्तर पर लग जाती है, उसे भी ऑडिट करने की जरूरत है। तो गेमिंग की डेवलपमेंट से लेकर पब्लिशिंग की हम बात करें, स्ट्रीमिंग की हम बात करें, उसका ऑडिट हो, हर एक लेवल पर इसे सुनिश्चित किया जाए कि ये बच्चों के लिए एक सेफ स्पेस अपने आप में बन पाए। तो देखिए, एक तरफ चिंता के युवाओं को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा, अभिभावक के नाते भी, समाज के नाते भी, और देश के एक जिम्मेदार नागरिक के नाते भी। दूसरा, कैसे हम अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं, उसका भी सुझाव किया गया है। बिल्कुल ज्योति जी, यहाँ पर जिस तरीके से आपने कहा है कि ऑरेंज इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इंडिया के अर्थव्यवस्था पर जाएगा, और बहुत सारी बातें आपने भी यहाँ पर एक्सप्लेन की है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। दर्शकों, सीधे आपको लेकर चलेंगे लोकसभा, यहाँ पर सदन में यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जो है बात कर रहे हैं।